Hello dear students, this is Pallavi Sharma, Commerce Faculty Economics Lecturer. Students, this is my 18th video, and in this video I am going to discuss with you the new chapter of macroeconomics, that is money and banking. Students, as we know and we are familiar with the two terms, that is money and banking. Both of these two terms are very familiar to us. If somebody asks what is money, we can explain what is money. If somebody asks what is banking and banking system, what are banks, we can easily describe them as a non-economic student also. But today, since we are economic students, we have to explain and give our answers in that form itself. So let's begin with our introduction. Actually, what happened in ancient times, wants of man were limited and he used to satisfy his wants himself. For example, if he was hungry, he used to satisfy his hunger by plucking fruits from the forest or by hunting, used to drink water from nearby ponds, lakes, rivers, whatever. And this way, he had not to depend on others for satisfaction of his wants because man was self dependent. But gradually, what happened? Man's wants grew with the advance of civilization and economy. Today, it is impossible for any individual to satisfy all his wants himself. Today, the needs are so vast, like we want everything in our lives, which is helpful for us. Like we want AC, fridge, food grains, clothes, house, furniture, mobile phones, laptop, tabs, everything we want. It is clear that we cannot alone produce all these goods. Today, instead of producing all the commodities required by the individual, he spends his time in producing only one commodity and by exchanging or selling that commodity with money. He satisfies all his wants with that money today. In earlier times, there was a common system prevalent that was known as the barter system. This barter system at that time, though helped in exchanging with each other, but also there were many difficulties of this barter system. So let's first see what was this barter system. So if somebody asks the definition of barter system, it is simple. When one commodity is directly exchanged for the other, it is called the barter system. For example, rice is exchanged for wheat, cloth is exchanged for rice, etc. When money had not been invented, this type of system was prevalent in the economy. Even today, in some remote areas, this kind of system is seen, but very few such kind of villages are seen. इस बार्टर सिस्टम में कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, या हम कह सकते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जो उस समय लोगों को फेस करने पड़ते थे. Barter system was prevalent in the beginning of human civilization. The hunter used to get milk, blanket, or rice in exchange for his hides. A person could get fruits, meat in exchange for wheat. But what happened? Many difficulties and inconveniences cropped up in the barter system, and this system proved to be improper for business. We can guess the difficulties of the barter system with the help of an interesting examples
In fact, there are many examples which shows that there were difficulties of this barter system earlier. First kind of difficulty which was seen was double coincidence of wants. What was this double coincidence of wants? जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अर्थ है किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे की आवश्यकता और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले की आवश्यकता को पूरी करती हो, किंतु यह एक दुर्लभ घटना है। वास्तव में यह बहुत कठिन है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे आप अपनी वस्तु दे सकें और वह आपकी आवश्यकता हो और दूसरों को आप जो दे वह उसकी आवश्यकता हो। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय बहुत ही सीमित स्तर पर हुआ करता था। विनिमय मीन्स एक्सचेंज, वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज होता था। सो यह बहुत ही लो लेवल ऑफ एक्सचेंज था। इससे आप कोई अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते थे। इससे आप सिर्फ अपने एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। तो यह सबसे बड़ी कठिनाई थी जिसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत या ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक दुर्लभ घटना होती थी। उसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करने की जो लागत होती थी वह बहुत ही ऊंची होती थी। इन लागतों के दो महत्वपूर्ण घटक होते थे। पहला था तलाश की लागत, सर्च कॉस्ट। दूसरा था प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं। तलाश की लागत जो थी, उस व्यक्ति को खोजने की लागत जिसकी ज़रूरतें आपसे मेल खाती हों, इसमें समय की बर्बादी होती थी और ऊंची अवसर लागत भी शामिल होती थी। यह समय आप कुछ अन्य कार्य कर सकते थे, लेकिन चूँकि आपके पास जो वस्तु है वह आपको एक्सचेंज करनी थी अपने ज़रूरत की वस्तु के साथ, इसीलिए आपका जो समय बर्बाद हुआ दैट वाज नोन एज सर्च कॉस्ट। प्रतीक्षा की अनुपयोगिता थी। उपयुक्त व्यक्ति जो उस वस्तु को खरीदने के लिए राज़ी होता था जो आप बेचना चाहते थे और उस वस्तु को बेचना चाहते हैं जो आप खरीदने के लिए राज़ी हैं, कि प्रतीक्षा जो उस टाइम पीरियड में टाइम गैप हो जाता था, अब असुविधा में अनुपयोगिता होती थी, इसीलिए इसे कहते थे प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। तो इस प्रकार यह पॉइंट क्लियर होता है कि ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज जो था वो बहुत ही हाई था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आज हम देख सकते हैं कि हमारे मुद्रा, हमारे मनी का एक वैल्यू है। 10 रुपये का नोट 10 रुपये तक के सामान आपको दे सकता है। एक 100 रुपये का नोट से आप 100 रुपये के लागत की वस्तु को खरीद सकते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू है हर चीज़ की, कि आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं उसके लिए एक मेज़रमेंट का तरीका है। जैसे आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, आपको 1 केजी चीनी चाहिए, आपको 1 क्विंटल चावल चाहिए, यह सभी कुछ एक मेज़रमेंट के तहत होता है। लेकिन पहले ऐसा कोई मेज़रमेंट का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं था कि अगर आपको चीनी चाहिए तो वह केजी में मिलेगी। 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम्स होता है, वो उस समय लोगों को नहीं पता था। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती थीं जो उस तरह के मेज़रमेंट के वैल्यू के अभाव के कारण किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल जाती थी।
तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य की समान इकाई का अभाव पाया जाता था। वस्तु का मूल्य व्यक्त करना बहुत ही कठिन होता था। इसीलिए यह एक ड्रॉबैक था। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह एक ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान या स्थगित भुगतानों की प्रणाली का अभाव, दैट इज लैक ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। जैसा हम लोग आजकल करते हैं कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो हम तुरंत भी पूंजी ना दें, अपना चेक दे दें, हम उस व्यक्ति को बोल दें कि हम आपको चेक दे रहे हैं, इसकी भुगतान हम कुछ दिनों के बाद करेंगे, तो वह व्यक्ति आपको वह वस्तु देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पहले इस तरह का भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के भुगतान की कोई प्रणाली नहीं विकसित थी। तो भविष्य में किए जाने वाले या स्थगित भुगतानों से हमारा अभिप्राय है उन भुगतानों से जिन्हें तत्काल न करके भविष्य में कुछ समय पश्चात किया जाता था। उदाहरण के लिए ब्याज थी, मजदूरी थी, किराया आदि के भुगतान संबंधी जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं उन्हें स्थगित भुगतान कहते हैं या डिफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। तो यदि आप एक किसी श्रमिक की सेवाएं भाड़े पर लेते हैं और उसके साथ 5,000 प्रति माह भुगतान करने का औपचारिक समझौता करते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आप क्या करेंगे? बार्टर सिस्टम में आप क्या करेंगे? क्या आप उसे मेज, कुर्सी टेबल दे देंगे, चावल गेहूं देंगे, दवाई चॉकलेट देंगे? तो किस तरह से भुगतान करेंगे? तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय में। फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स या डिफर्ड पेमेंट्स को देने में काफ़ी कठिनाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई, दैट इज डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम में वस्तुओं के मूल्य का हस्तांतरण करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि उस समय इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपके पास नहीं थे। उस समय लोगों के पास सड़कें नहीं थी, इस तरह से उन लोगों के पास इतनी मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, इतना तेल नहीं था, तो इस तरह के रॉ मटेरियल्स नहीं थे कि एक स्थान से दूसरा स्थान भेज दिया जाए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपना मकान बेचकर दूसरी जगह जाना चाहता है, उस मकान के बदले में वस्तुएं या पशु ही प्राप्त होंगे। भारी वस्तुओं जैसे अनाज आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी कठिन होता था। रास्ते में पशु बीमार हो जाते थे, मर भी जाते थे, इसलिए मूल्य का हस्तांतरण या वैल्यू का ट्रांसफ़र उस समय बहुत ही मुश्किल था। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा, बैंक खाता, डिपॉजिट, चेक, ड्राफ्ट ये सब कुछ नहीं थे। इन सुविधाओं के अभाव में आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन किस प्रकार की होती होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोर और वेल्थ और वैल्यू। धन या मूल्य के संचय में कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन या मूल्य संचय का वस्तुओं या पशुओं के रूप में किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से वस्तुओं को रखना काफ़ी दिन तक बहुत ही कठिन कार्य था। इनका अधिक समय तक संचय नहीं किया जा सकता था। यदि इनके रूप में धन का संचय किया जाएगा तो वह कुछ समय बाद नष्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर वस्तु को ज़्यादा दिन तक रखने की कोशिश करते उस समय में, तो वह बहुत ही मुश्किल कार्य था। वस्तुओं तथा पशुओं का संचय करने के लिए बहुत अधिक लंबे चौड़े स्थान की भी आवश्यकता होती थी। अगर आपने किसी से अपने ज़मीन और पशु एक दूसरे से एक्सचेंज किया है तो ज़मीन तो ठीक रह जाएगी, लेकिन पशु को रखने के लिए हो सकता है आपके पास जगह ना हो, लेकिन आपको पशु रखना था। तो इस तरह की बहुत तरह के छोटे छोटे माइन्यूट प्रॉब्लम्स थे जो बार्टर सिस्टम में देखने को मिलते थे।
सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं पे अपना वीडियो के एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषा, कि आखिर इस बार्टर सिस्टम के ख़त्म होने के बाद यह मुद्रा आई और मुद्रा किन किन रूपों में हमारे साथ आज के डेट तक चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।